Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again, okay, to continue the lecture series of पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर आधारित है. लेट मी फर्स्टली इंट्रोड्यूस टू यू दी वंडरफुल लेडीज बिसाइड्स मी. इनका नाम है रिद्धि सिद्धि, और लेटर ऑन ये आपको रेशो के मामले में कोई तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि इनका रेशो 1:1 है. कैसे है वो हम सब में देख लेंगे. लास्ट टाइम वाले प्रॉब्लम में थोड़ा अजीब था क्योंकि कैपिटल रेशो कहा था, बट चलो रिद्धि सिद्धि. सिद्धि थोड़ी कंफ्यूज लग रही है, बट डोंट वरी, वो कंफ्यूजन हम लोग दूर कर लेंगे. टुडेज क्वेश्चन, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर हमेशा टाइटल में मेंशन रहता है, आप टाइटल में चेक कर लीजिए. क्वेश्चन नोट टेक्स्ट बुक अपने सामने आप ज़रूर रखिए. सबसे पहली बात क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 and a balance sheet as on that date after you consider the following adjustments. Okay, सबसे पहले क्या, ओपनिंग स्टॉक, तो वो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे. कैपिटल वो पार्टनर्स कैपिटल में. परचेसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे. वेजेस को ट्रेडिंग, कैरेज को ट्रेडिंग, क्रेडिटर को लाइबिलिटी में लिखेंगे. कैरेज इनवर्ड इज ट्रेडिंग. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, कैश इन हैंड एसेट. इंश्योरेंस ऑफिस का खर्चा है तो P&L. डेटर एसेट है, ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी. कैरेज आउटवर्ड प्रोडक्शन के बाद होता है, इसके लिए P&L. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट, सेल्स ट्रेडिंग. परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग. रेंट, फैक्ट्री रेंट कहते तो मैं उसको ट्रेडिंग में लिख देता, पर क्योंकि रेंट ही कहा है हम अज्यूम करते कि ये ऑफिस का है, P&L. बैड डेप P&L. RDD क्योंकि ओल्ड RDD है तो वो भी P&L. डिस्काउंट आप नोटिस करोगे तो दोनों साइड पे है, डेबिट क्रेडिट. इनफैक्ट लाइक लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने ये दोबारा हम कर रहे हैं. नो प्रॉब्लम्स, डेबिट का डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में जाएगा. P&L. ट्रैवलिंग भी P&L, एडवर्टाइजमेंट P&L. तो सिंपल मार्किंग, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट बट सिंपल मार्किंग. फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, hey that is so simple. सेकेंड, आउटस्टैंडिंग, वेजेस ट्रैवलिंग को एक स्टार कर लो आपके टेक्स्ट बुक में. डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, दोनों को एक स्टार कर लो. कोई गूगली नहीं, डोंट वरी, सिंपल है. इंश्योरेंस पेड इन एडवांस. लास्ट लेक्चर में देर इज
there was some confusion with insurance, but not in this lecture. Okay, last lecture में for the year ended and up to, nothing like that, very simple and straightforward. And goods of 3,000 destroyed by fire, that's unfortunate to happen, आग लग गई, and the insurance company rejected the claim. Means what? I told the insurance company, okay, insurance company, you have to pay me because I have taken insurance from you. I'll give you a very small, not a story, but something which is very, very true. There is something called as medical insurance. Medical insurance से क्या होता है ना, if a person takes medical insurance, अगर कोई लेता है और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो जो खर्चा होता है हॉस्पिटल का, the medical insurance company pays back. Okay, which is good, which is very good. Okay, from your own pocket you don't have to pay the full amount. But very important, when you fill up the form and when you take the medical insurance, you have to tell the company, the insurance company, if you drink alcohol, बोलना पड़ेगा. If you smoke cigarettes, बोलना पड़ेगा. Because these are wrong habits. इसके वजह से आपका हेल्थ ज़्यादा खराब हो सकता है. If you don't tell them, तो फिर क्या होता है, देखो वो पता लगा लेते हैं. If आप सिगरेट स्मोक करते हो, अल्कोहल लेते हो, ओके, एंड आपने नहीं बोला, आफ्टर 1-2 years आप बीमार गिर गए, आप चले गए हॉस्पिटल में एंड यूर ओके, आपको दवा किया, ICU, ये वो, एवरीथिंग वॉज डन, नाउ यूर ओके. बिल आया 2 लाख, आप गए इंश्योरेंस वाले के पास और आपने इंश्योरेंस वाले को बोला, क्या देखो 2 लाख खर्चा हुआ, चलो दो. वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो लोग आपको नहीं बोलेंगे, बट हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर को पूछेंगे क्यों बीमार हुआ था ये. एंड इफ इट इज समहाउ कनेक्टेड टू योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ओके, इसके वजह से यू फेल इल, देन दे विल रिजेक्ट योर क्लेम. वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? तुमने चीटिंग किया उनके साथ, यू हैड द रॉन्ग हैबिट्स, but you did not declare that. So they will say, when you cheated, then we will also not pay you. So there are situations where you ask the insurance company, मेरा नुकसान हो गया, pay me, but they will investigate. And if they find out that you are at fault, then they will reject your claim. होता है. तो यहाँ पे वैसे ही हुआ है, rejected. हमको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है. Then obviously it's a loss. Right now, postings. First thing, stock. ओपनिंग स्टॉक है जी, लिख लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक में 48,000. फिर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं 50 and 30,000, रिद्धि सिद्धि. नेक्स्ट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लो जी 22,500. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लो जी 800. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लो 1,000. सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेडिंग अकाउंट में मत लिखो, लाइबिलिटी में लिखो 27,600. फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे जितने भी हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस किए हैं, अराउंड 80% आइटम सेम रहते, 80%. बाकी 20% में हेरा फेरी होती है और कुछ थोड़ा अजीब आता है, थोड़ा डिफिकल्ट आता है, बट 80% सेम मार्किंग होता है, वो सेम ही चीज़ें लिखनी है. बिल पेएबल लाइबिलिटी में लिख लीजिए 20,000. कैश इन हैंड एसेट में लिख लीजिए द फर्स्ट आइटम 2,850. इंश्योरेंस P&L 1,200. सन्ड्री डेटर एसेट 32,000. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बोलना. क्या? दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयर क्वेश्चन. रेयर, 14वीं का चांद भी आपको 2-3 बार दिख जाएगा.
ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि डेटर के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्लीज नोट, देयर इज नो एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स। देन यू विल से सर वो बर्नो फॉर्मूला का क्या करो, उधर भी कुछ खास नहीं है, डोंट वरी, आई विल शो यू। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइबिलिटी 18,000, carriage outward is P&L 900, land and building is asset 42,500, furniture is asset, adjustment तो इसमें भी है 38,700, सेल्स ट्रेडिंग में लिख लीजिए 47,000, परचेस रिटर्न परचेसेस के नीचे और आप माइनस करके बाहर डाल सकते हो 22,000। देन देर इज सेल्स रिटर्न, सेल से माइनस करके बाहर डालो 46,600। नाउ इफ़ यू माइनस, अगर आप बोलो नहीं सर मैंने अभी नहीं किया, मैं बाद में माइनस करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद से कर लेना, क्योंकि इनर कॉलम में जो लिखा है ना उसकी वजह से यू नॉट गेट मार्क्स। आउटर कॉलम में अगर आंसर करेक्ट आता है तो ही मार्क्स मिलेगा। ऐसा मत बोलो कि आउटर कॉलम में लिख दिया तो मार्क्स मिलेगा, करेक्ट आता है तो मिलेगा। रेंट P&L में लिख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आई डिडंट से बट लेट मी से, प्लीज नोटिस रेंट जो है ना वो क्रेडिट में है, ये वाला 1,800 डेबिट में नहीं है। सो मेनी, इनफैक्ट मेरे से भी गलती हो सकती है। हाँ रेंट, दैट्स इट, नो 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 नो, यस P&L क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट में है 1,800, वेरी सिंपल, क्योंकि उसको आपको रेंट रिसीव्ड कहना है, नॉट पेड। नॉर्मली पेड होता है, रेंट रिसीव्ड। So do pay careful attention that on which side it is. This style of trial balance is little confusing. When you have a debit and a credit given separate, खिड़की अलग है तो confusion नहीं होता, बट ये तो मतलब कभी डेबिट में जाता है कभी क्रेडिट में जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट बैड डेप्ट है, आप बर्नो फॉर्मूले में लिख लीजिए 300। नेक्स्ट RDD है, ओल्ड RDD, वो भी बर्नो फॉर्मूला में लिख लीजिए -350। डिस्काउंट दोनों साइड पे, तो अभी दोनों साइड पे लिखो, डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड एंड या क्रेडिट बाय डिस्काउंट अर्नड या रिसीव्ड, बट दोनों साइड पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट 250, देयर इज वन एडजस्टमेंट, एंड एडवर्टाइजमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है 4150। देर इज नो hidden adjustment in this question. In fact, even in our last lecture we did not have a hidden adjustment. Simple problem, very straightforward, और काफ़ी जल्दी भी हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया था। लेट्स सी आज क्या सिचुएशन होती है, बट आई होप आपने ये सब लिख लिया है, आपका पहला एडजस्टमेंट। अगर नहीं लिखा तो थोड़ा पॉज कर लो वीडियो और उसके बाद में आप लिख लेना। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 48,700, देखो पहले तो यहाँ पे आता है और दूसरा बैलेंस शीट में आता है 48,700। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनफैक्ट ये लास्ट लेक्चर में भी था, वेजेस 700, आप वेजेस में ऐड कर लीजिए, फिर टोटल बाहर डाल दीजिए। अगेन आप बोलोगे सर मैं बाद में डालूंगा, तो बाद में डालो, तकलीफ नहीं है, बट डालिए, वरना क्या है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो भी हो रहा है, द इंटेंशन इज टू गेट मार्क्स, एंड इफ यू फॉरगेट एंड देयरफॉर यू डोंट गेट मार्क्स। 700। सिमिलरली देयर इज वन मोर आउटस्टैंडिंग, वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का 200, तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आप ऐड कर लो, आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 450 हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट में 450 मत लिखना, काफ़ी बच्चे लिखते हैं, गड़बड़ हो जाता है और कंफ्यूजन में, हड़बड़ाहट में वो लिख लेते हैं। सो इट्स 200, ओके 200, सो प्लीज़ डू दैट।
एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रीशिएट. सो नो कन्फ्यूजन्स, लास्ट टाइम थोड़ा कुछ अलग स्टाइल में डेप्रीसिएशन था, बट नाउ इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. लैंड एंड बिल्डिंग 10%. सो ये जहाँ पर भी है लैंड एंड बिल्डिंग, उसका 10% बड़े आसानी से आ जाएगा. 4250 आउटर कॉलम में आप माइनस करके लिखिए 38,250. ये फर्स्ट इफेक्ट है, फर्स्ट. सेकेंड पीएनएल में होगा डेबिट साइड. टू डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 4250. बट देर इज़ वन मोर, वो फर्नीचर है, वो मैंने पढ़ा नहीं, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको. एंड फर्नीचर बाई 5%. सो लेट मी डू दैट ऑल्सो. जस्ट अबाउट 5% इज अ लिटिल बिट फिनिकी, थोड़ा तकलीफ देगा क्योंकि 38,700 का है. 1935, 36,765 माइनस सही से करे तो बाहर का आंसर आता है, क्योंकि इन कॉलम कोई दिखता नहीं है. सेकेंड इफेक्ट लिख लेते हैं, द टोटल ऑफ डेप्रीसिएशन, क्योंकि दोबारा इन कॉलम कोई नहीं देखता. 6185. फोर्थ, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस. पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड ना, कल का भरा है ना. एडवांस तो हमेशा कल का ही होता है, तो आप प्रीपेड माइनस कर लो. कोई ड्रामा नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आउटर कॉलम में 900. प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट इज एसेट, क्योंकि प्रीपेड आपको फ़ायदा देता है. ओके, तो यहाँ पर और यहाँ पर 300 फ़ायदा देता है. नेक्स्ट एंड लास्ट, गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अनफॉर्चुनेटली आग लग गई, होता है काफ़ी बार, तो बरसात में आग लगती है, विच इज़ वेरी वियर्ड कि सर पानी गिर रहा है तो आग कैसे लगेगी. बट बिकॉज ऑफ दैट, इफ़ द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आर नॉट गुड, शॉर्ट सर्किट होता है, वायरिंग अच्छा नहीं है, तो भी इलेक्ट्रिकल इश्यूज होते हैं एंड देयर इज़ अ फायर. सो पहले तो आप आपके गोडाउन से वो गुड्स फेंक दोगे. 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. नाउ द प्रॉब्लम वेरी क्लियरली स्टेट्स, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम. मतलब क्या है, आपने फॉर्म भर के दिया ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी को, बट इंश्योरेंस कंपनी ने जब अपनी तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन किया, ओके, उन्होंने ढूंढा अरे आपके फैक्ट्री और गोडाउन में वायरिंग अच्छी नहीं थी. ओके, आपको वायरिंग टेस्ट करना चाहिए था. काफ़ी लोग सेकेंड वेव के दौरान ऑफ कोविड इन इंडिया, देयर वर मैनी स्मॉल हॉस्पिटल्स इन महाराष्ट्र. ओके, एकाएक आग लग रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. एंड देन देयर वाज एन इन्वेस्टिगेशन डन. इन्वेस्टिगेशन कि ऐसा क्यों है कि 4-5 हॉस्पिटल्स में अलग अलग जगहों पर आग लगी. सो द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, मालूम पड़ा कि वो हॉस्पिटल में जो कैपेसिटी है मे बी 20 पेशेंट्स, दे हैव केप्ट 40 पेशेंट्स. अनफॉर्चुनेट है, बट देन वो टाइम पे ज़रूरत थी. Now when you keep 40 patients, the load on the electrical systems, on the air conditioning increases a lot. उस हिसाब से वायरिंग नहीं था, उतना लोड के लिए वायरिंग नहीं था, तो the wires burnt and accordingly there was a lot of destruction. तो वही है, then the insurance company will point out कि गलती आपकी है, गलती आपकी, इसके लिए हम आपको क्लेम, आपका पैसा नहीं देंगे and you can't do anything about it, क्योंकि वो सही कह रहे हैं. तो ये पूरा जो 3000 है, ये आपका लॉस है जो पीएनएल में जाता है विद द वर्डिंग्स लॉस बाय फायर. ओके, तो पूरा रिजेक्ट किया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला. ये आपका, और ये हमारा लास्ट का एडजस्टमेंट था. इसके आगे हमको ये सम भी टैली करना है तो कर देते हैं. अगेन कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज अवेलेबल. यू कैन ऑलवेज मेंशन एनी आइटम दैट यू थिंक आई वेंट वेरी फास्ट एंड आई विल डू माई बेस्ट के टेक्स्ट में वहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ. सो इट हेल्प्स यू ऑल्सो एंड इट हेल्प्स एवरीबडी एल्स हु इज गोइंग टू वॉच दिस लेक्चर लेटर ऑन. डेबिट टोटल 72,500, बट क्रेडिट हमेशा हैवी रहता ही है 98,300. तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25,800 है. यहाँ से हम उसे उठाकर अगली अकाउंट में लेकर जाएंगे क्रेडिट साइड पे.
और फिर डेबिट का टोटल हम करेंगे टू फाइंड नेट प्रॉफिट, मे बी नेट लॉस, बट द डेबिट टोटल इज, हाँ, one thing that I wouldn't say I forgot, but I should tell you that जो बन्नो फॉर्मूला है ना, उसका जो आंसर है वो नहीं आया। क्यों? वो मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्प्ले किया था, बट मैंने वापस से निकाल दिया आपको ध्यान में, आपके ध्यान में लाने के लिए, दैट इफ यू सी हियर 300 माइनस 350 माइनस इट्स नेगेटिव 50, जो आप डेबिट में नहीं लिख सकते, सो यू डोंट राइट इट, वेल यू शुड राइट इट, बट क्रेडिट साइड पे यू शुड राइट इट एज excess RDD, EXCSS, excess RDD, very rarely happens, how much 50, तो जो वो नेगेटिव आंसर है वो पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव आंसर पॉजिटिव। हाँ, सो आई जस्ट हैड टू रिमूव इट एंड अगेन शो इट टू, ताकि आपका ध्यान वहाँ पर आए। हाँ, अगर ये आपने किया तो मैं अभी ये सम नेट प्रॉफिट की ओर लेके जाता हूँ। सो डेबिट 16285, बट क्रेडिट इज हैवी, ये प्रॉब्लम में हैवी है। सो द नेट प्रॉफिट दैट यू गेट इज 12365। नाउ इन दिस क्वेश्चन द रिद्धि सिद्धि रेशो वाज इक्वल, हाफ एंड हाफ, बट अगर आप हाफ एंड हाफ करो तो आपको डेसिमल पॉइंट आएगा 6182.5, 6182.5। अगर आप मैथ्स का दिमाग लगाओ तो दोनों 6182 विल बिकम 6183, बट देन अगर दोनों को 33 करो तो आपका यूनिट प्लेस 1 रुपये से बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट योर फॉल्ट। आई रिपीट माई सेल्फ, दिस 6182.5 हैज़ टू बी राउंडेड ऑफ and made into 6183. Now the same happens to Siddhi also, but अगर दोनों को राउंड ऑफ करें then you are increasing 1 rupee. तो I repeat, कोई रूल नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम रिद्धि को 1 रुपया ज़्यादा दो तो सिद्धि को कम, सिद्धि को 1 रुपया ज़्यादा दो तो रिद्धि को कम। डोंट आस्क मी कि सर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा कोई कानून नहीं है, आपको एक के लिए राउंड ऑफ करना है, दूसरे के लिए नहीं, बिकॉज इफ अगर आप दोनों के लिए राउंड ऑफ करो कि सर उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, उनको बुरा नहीं लगेगा, मैथ्स को बुरा लगेगा, क्योंकि वो आंसर 12365 ही आ सकता है। सो आई राउंडेड ऑफ फॉर रिद्धि, और सिद्धि आई डिडंट राउंड ऑफ। आई पिक दीज नंबर्स and transfer it to the next page. When I do that, I will total Riddhi and Siddhi and get the closing capital. For Riddhi it would be 56,183 and for Siddhi it would be 36,182. It's simple because there is nothing to be subtracted. That is the answer for the closing capital. What do I do with it? Well, I will take it to the liability side and I will add it up and put it in the outer column, because I have told you tens of thousands of times, well not thousands but tens of times, that the inner column is rougher. You don't get marks for it. 92,365. I repeat myself, 92,365. And when I add it up, if my hard work is adequate, was correct, then both the sides will come the same. The liability being 158,865 and similarly here 158,865. These questions, that is the last lecture question, today's question, they were quite average questions. So the one thing that very clearly proves that is what is the time that I have taken. That's quite fast. This is one of the fastest lectures of final accounts that I have completed. But where the time is required, I will devote that much of time for it. So if there is any new explanation, like around 3 lectures back when I had a provident fund, that required more time, so accordingly I had to dedicate more time to that. But here it was not necessary. The time devoted was just about it. I hope the entire explanation and the entire tally procedure has been understood by you. If you did understand it, please do like it. Maximum students, I don't know why, don't do that, but it does make a big difference. Not for you, for you it's only a click, but हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क गिरता है when you like the lecture video, because a certain calculation is done by
the YouTube algorithm, and then the YouTube algorithm, the software, pushes these videos to those people who may have never heard about Stevenson Makes It Easy. Now, if they do hear and if they do watch this particular channel, then they would also be helped with everything that is the content that is being provided here, free of cost. Till the time we meet again, प्लीज़ अगर कोई दिक्कत होगी, कोई सजेशंस रहेगी, कोई सुझाव रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हो. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशंस देते रहे हमारे लेक्चर्स के बारे में. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो याद से आप वो भी कर लीजिए. टिल द टाइम वी मीट अगेन, प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. I will meet you very, very soon with the continuation of this chapter of final accounts. A good day to all of you. God bless. Bye for now.